Good evening, students. We were doing this topic of component of training, and we have done these 2 points that training policy should be made by the organization and there should be a top management commitment. Then only training programs can be successful in an organization. Commitment, because every training needs financial help, financial inputs, and those inputs can only be made if there is a commitment from the top management, right? So it is very important point that there should be a training policy evolved within the organization and it should be supported by the top management. And secondly, training budget, of course, जैसा मैंने previous lecture में कहा था कि budget are made for the entire year in very good organization like for example Tata's वगैरह में. If not, then also 6 monthly or next 6 monthly training budgets are made. That what training is going to be imparted at what level and how much budget it will entail. यानी कि कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी. खाली ट्रेनिंग प्रोग्राम या पॉलिसी बनाने से नहीं होगा. This is very important because financial inputs are there. So budget has to be made for whatever kind of training being imparted within the ऑर्गेनाइजेशन. ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में. लेट अस मूव अहेड. थर्ड है ट्रेनिंग कंपोनेंट बिसाइड द पॉलिसी एंड बजट एंड ऑल इज द विलिंग ट्रेनीज. जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा स्टूडेंट्स दैट यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक द वाटर. पानी तो वो अपनी मर्जी से ही पिएगा. सो अनलेस देयर इज अ विलिंगनेस अमंग्स द ट्रेनीज, खुद से अपनी एक विलिंगनेस ना हो तो ट्रेनिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती. जो लर्न जिसे करवाना है अगर वो खुद से इच्छा ना रखता हो लर्निंग की, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है. तो वी नीड पीपल दोज हु आर प्रोएक्टिव, दोज हु रियली वांट टू डेवलप देमसेल्फ, एंड फॉर दिस द विलिंगनेस ऑफ द ट्रेनीज इज एसेंशियली रिक्वायर्ड. So it is very important that in spite of the top management commitment and support, if the trainees are not willing to undertake the training, then it shall be a waste of exercise. ठीक है, ये सारा उसका तभी फायदा है जब अंदर से इच्छा हो ट्रेनीज को वो ट्रेनिंग अटेंड करने की. फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम द ट्रेनी शुड बी मोटिवेटेड एंड विलिंग टू अंडरटेक द ट्रेनिंग. सो सारी बात यह है कि देयर शुड बी विलिंगनेस फ्रॉम विद इन ओनली कि यस we are going to do it, we are going to learn, we are going to enhance our capability. Unless and until this kind of willingness is amongst the trainees, it cannot be a success. The training program can never be a success. So very essential for this, in the pre-training session, they are to be told about it is important as to how it is going to help them in enhancing their capability, skill, knowledge, etc., which in turn shall make them a better professional and thereby enhance their prospect for promotion, pay, and overall employability for the team. So pre-training sessions में बच्चों ये बात दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह उनको समझानी चाहिए नहीं कि क्यों ये ट्रेनिंग उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये उनके करियर के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या क्या चीजें वो लर्न कर पाएंगे और कैसे उनको अपने करियर में बढ़ावा मिलेगा. हाउ दे आर गोइंग टू एनहेंस the growth in their career by getting promotions, pay, increasing salary, and overall capability building will be there. So overall employability will be enhanced. तो ये बात उनको जब अच्छी तरह समझाई जाए और वो इस बात को समझ जाए तभी उनके अंदर से विलिंगनेस आएगी कि यस वी शुड डू इट एंड गिव इट आवर होल हार्टेड सपोर्ट फॉर वट एवर ट्रेनिंग इज बीइंग इम्पार्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड नॉट बी अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट. It should be full hearted attempt, then only it will give the right kind of result. So willing trainees is another third one, but a very, very important element or component of training. Fourth is your students, another important one, and that is trained and professional trainers. There can be difference in what the trainer teaches and what the trainee learns. यानी कि सिखाने वाला क्या सिखाना चाहता है और पढ़ने वाला लर्न करने वाला क्या लर्न कर रहा है, दोनों में फर्क हो सकता है. कहने का मतलब यह है कि अगर जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो भी वेल ट्रेन्ड ट्रेनर्स होने चाहिए, तभी वो अच्छी लर्निंग अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट कर पाएंगे ट्रेनीज को. अदरवाइज अगर उनकी इफेक्टिवनेस नहीं है तो ट्रेनीज की भी इफेक्टिवनेस नहीं आ सकती. देयर कैन बी अ डिफरेंस इन व्हाट ट्रेनर टीचर्स एंड व्हाट द ट्रेनी लर्न्स. तो दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं. ठीक है, इसलिए इसके लिए ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया जाता है. ठीक है, सो दैट दे आर बेटर ट्रेनर.
So it is very important that trainees should themselves be trained and capable of imparting knowledge and skill by understanding the need of the trainees. जैसा टीचिंग में है, एक नॉर्मल टीचर अपने क्लास की जरूरत के हिसाब से इम्पार्ट करता है, लर्निंग करवाता है, एजुकेट करता है अपने स्टूडेंट्स को, उसी तरह प्रोफेशनल सेटिंग में भी ट्रेनर को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वो किन के सामने खड़ा है, किस लेवल के बंदे हैं, और मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो भी बताऊं वो उनकी समझ में आए. तो ये सारी चीजें ट्रेनर को पता होनी चाहिए और इसके लिए उसको प्रायर ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए. So the bottom line is to understand is that the trainers themselves should be trained enough to impart good training to the trainees. फिफ्थ है वेन्यू एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग. ऑब्वियसली ये चीजें कंपोनेंट में आती हैं कि किस जगह पे होगी और कितने समय के लिए होगी. कैन डिटरमाइन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग. भाई 2-4-5 दिन के लिए भी ट्रेनिंग हो सकती है, 1 महीने 2 महीने के लिए भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब एंड द नेचर ऑफ द ट्रेनिंग टू बी इम्पार्टेड. सो वेन्यू कैन बी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड. ऑफ कोर्स दूसरे शहर में भेजा जा सकता है ट्रेनिंग के लिए या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग. सिमिलरली ड्यूरेशन कैन बी डिटरमिन एज पर द लर्निंग रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग. कितने समय के लिए होगा, 5 से 7 दिन होगा. ठीक है. लर्निंग टू ऑपरेट अ मशीन में टेक 5 to 7 days ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग. ठीक है, सुबह से शाम तक. बट लर्निंग कंप्यूटर फॉर अ कंप्यूटर इलिटरेट पर्सन माइट टेक अ मिनिमम ऑफ 1 month टू गेन ऑपरेशनल नॉलेज. तो ये एक एग्जाम्पल है समझाने का कि ट्रेनिंग किस प्रकार की और किस चीज की दी जा रही है. इसके ऊपर निर्भर करेगा कि व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग. अकॉर्डिंगली इट हैज टू बी डिटरमिन्ड. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, in nowadays time we have got the culture of multinational companies which are all in our country, and let's say there is an American country which has hired a new trainee. So now this trainee will be sent back to the parent company in US for training. So it might take 1 month or 2 months depending upon the nature. Let's say it's a IT high-tech company. So naturally on programming languages or something latest related to technological aspect, he has to learn there. So naturally it can be within 1.5 months to 2 months wherein there is a training and learning session for him on a particular software or on a particular project. And when he come back, he not only has enhanced his knowledge and capabilities, but is able to impart this knowledge or transfer this knowledge to other employees as well. So there can be n number of conditions under which venue and duration of the training can be determined. Different methods and courses in training fulfills the requirement of learning various skills and gaining knowledge. So depending upon the requirement, a training may be on the job or off the job. ये आप लोग पहले से HRM में पढ़ चुके हो कि जॉब करते हुए जॉब को सीखना या ऑफ द जॉब, यानी कि अलग से किसी ट्रेनिंग शेड्यूल में डाला जाना. जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, बैंक पीओ का एग्जाम होता है बच्चों, और पीओ बनने के बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में बनने, ये पहली सीढ़ी होती है बैंक में मैनेजर बनने के लिए. तो साल भर के लिए बंदे को अलग अलग पोजीशंस में, चाहे वो कैश पे हो, चाहे कैशियर का जॉब हो, अकाउंटेंट का जॉब हो, मैनेजरियल जॉब हो, या कैश ट्रांजेक्शंस जो विंडोज पे बैठते हैं उनका हो, यानी कि देयर इज अ काइंड ऑफ जॉब रोटेशन सो दैट ही गेट्स टू नो ईच ऑफ दी मेजर फंक्शनिंग. लोन डिपार्टमेंट में भी 1 महीने बिठाया, कैश पे बिठा दिया, विंडोज पे बिठा दिया, अलग अलग जो भी बैंकिंग की रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, फंक्शनिंग होती है, पोजीशंस होती हैं, उनमें जॉब रोटेट किया जाता है प्रोविजनरी ऑफिसर को. और सक्सेसफुली उसके बाद उसकी एक टेस्ट होता है, साल भर बाद ही इज अपॉइंटेड और गिवन अ चार्ज ऑफ अ ब्रांच और मेड अ असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर इन अ स्मॉल और बिग ब्रांच डिपेंडिंग अपॉन हिज कैपेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक. तो ये जो ट्रेनिंग है, ठीक है, अलग अलग मेथड है. उसी तरह एक मशीनिस्ट है, एक मशीन चलाने वाला है, उसकी ट्रेनिंग प्रोविजनरी ऑफिसर जैसी नहीं होगी. उसकी उस मशीन के ऊपर उस जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जितनी उसे चाहिए, ऑपरेशनल नॉलेज चाहिए उस मशीन के लिए, उसकी ट्रेनिंग उसके अनुसार ही होगी. सो यही कहा जाता है कि डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट कोर्सेज होते हैं अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग के लिए. ठीक है, ट्रेनिंग किस भी प्रकार की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब. टीचिंग एड एंड मटेरियल एज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर सेशन एंड दोज मटेरियल में इंक्लूड पोस्टर्स. अब किसी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करनी, क्लासरूम टीचिंग जैसे हो रही है तो पोस्टर्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, डिपिक्शंस, बुक्स हो गई, ग्राफ्स हो गए, स्लाइड्स हो गई, टेप रिकॉर्डर्स हो गए, चार्ट्स हो गए, मैनुअल्स हो गए. ठीक है, अलग अलग मैनुअल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें सिखाया जाता है. इक्विपमेंट, मशीन, सिमुलेटर्स एक्सेट्रा. इक्विपमेंट होगी, मशीन्स हो गई, सिमुलेटर्स. फॉर एग्जांपल जैसे पायलट को आजकल सीधे प्लेन उड़ाने के लिए नहीं दिया जाता है, पहले उसकी ट्रेनिंग सिमुलेटर्स पे होती है, यानी कि दे मिमिक द एक्चुअल फ्लाइंग कंडीशंस फॉर एग्जांपल.
और उनको उस कमरे में बिठा दिया जाता है और जो सेंसेशंस होती हैं बिल्कुल ऐसी होती है, वो सिमुलेट करती हैं एक्चुअल फ्लाइट को, तो जिससे कि अगर कोई गलती हो तो उसमें सुधार हो सके, क्योंकि एक्चुअल उड़ान में अगर कोई गलती करेगा तो उसका सुधार नहीं हो सकता, इट कैन लीड टू मेजर एक्सीडेंट। तो ये सिमुलेटर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, सिमुलेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, इक्विपमेंट मशीन्स का भी किया जाता है। क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए बुक, पिक्चर, स्लाइड, सारे ये टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स हैं जिसकी अपनी अहमियत है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, द टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स आर decided. So we will end our lecture over here, and further we will continue for the next lecture.